हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम एंड आई एम गुरमीत कौर। आज हम चैप्टर करेंगे हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। इट्स अ क्लास 9 chapter, so let's begin. The chapter are given in points, so here also I am going to discuss it accordingly. Number 1 here is this is a story about a 12-year-old girl. एक 12 साल की बच्ची है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है, उसकी ग्रैंडमदर और उसकी ये कहानी है. Who used to stay in a village in North Karnataka. And the narrator is telling that the transport system was not very good, so they used to get the morning papers only in the afternoon they used to get the weekly magazine one day late. तो उन्हें जो है मॉर्निंग न्यूज़पेपर दोपहर को मिलता था और जो वीकली मैगजीन जो उनके यहाँ आती थी वो एक दिन लेट आती थी. Why? Because the transport system was not very good. Now the narrator is talking about त्रिवेणी. इसके बाद वो त्रिवेणी के बारे में बात करती है. त्रिवेणी कौन है? त्रिवेणी एक पॉपुलर राइटर है in the Kannada language, and she was a wonderful writer according to her. Her style was easy to read and very convincing. तो नरेटर को लगता था कि उसकी जो राइटिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग होती है और इजी टू रीड होती है. Her story is usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people. तो वो किसी ना किसी तरह ordinary people से related लिखा करती थी and were very interesting. त्रिवेणी died at very young age. वो काफी जल्दी मर गई थी ना, मतलब इसका मतलब ये है कि जो त्रिवेणी है वो मर चुकी है, जो नॉवल राइटर थी. और even after 40 years people continue to appreciate her novels. लेकिन आज भी लोग उसकी novels को पसंद करते हैं. In the third point, the narrator is talking about a novel written by त्रिवेणी. अब त्रिवेणी के बारे में उसने पहले डिस्कस किया. वो बता रही है कि त्रिवेणी ने एक नॉवल लिखी थी called काशी यात्रे, which appeared as a serial in a Kannada weekly करमवीरा. तो ये एक सीरियल की तरह हर वीक जो है छपती है किसके अंदर? कर्मवीरा के अंदर. So it was a story about an old lady and her ardent desire to go to Kashi, or you can say Varanasi. So most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwar is the ultimate punya. And in the novel, the old lady is also believed the same in the story. So there was also a young orphan girl. तो ये उस नॉवल की बारे में बात कर रही है जो त्रिवेणी ने लिखी है. तो उसमें एक ऑर्फन गर्ल भी थी, एक अनाथ बच्ची थी, who falls in love but she had no money for her wedding. उसके पास पैसे नहीं थे. तो उस नॉवल के एंड में क्या होता है? The old lady gives away all her savings without going to Kashi, and the happiness of this orphan girl was more important than worshipping Lord Vishveshwara at काशी. तो उसको लगता है कि उस लड़की की, उस बच्ची की खुशी जो थी बहुत इम्पोर्टेंट थी rather than going to काशी. The narrator's grandmother name was Krishtaka. अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रही है. देखिए पहले उसने त्रिवेणी के बारे में बताया, उसकी लिखी गई नॉवल के बारे में बताया. अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बता रही है. उसकी ग्रैंडमदर का नाम है कृष्टाका एंड शी नेवर वेंट टू स्कूल. यानी कि वो अनपढ़ थी. शी कुड नॉट रीड, illiterate थी. So on every Wednesday, narrator read the next episode of the story to her. She forgot all her work and listened with the greatest concentration, and she could repeat the entire text by heart. तो उसकी ग्रैंडमदर इतने ध्यान से सुनती थी कि वो उसको याद हो जाता था और वो पूरा का पूरा as it is repeat कर पाती थी. Her grandmother never went to Kashi, so she identified herself with the novel's protagonist, and she was always interested in knowing what happened next. तो उसकी दादी भी कभी काशी नहीं गई. अभी हमने पहले पढ़ा कि हिंदूज के लिए वहां जाना अच्छा समझा जाता है, तो ग्रैंडमदर भी कहीं ना कहीं काशी जाने की इच्छा रखती थी. लेकिन क्या होता है, इसीलिए वो अपने आप को उस नॉवल के प्रोटोगनिस्ट के साथ अपने आप को कंपेयर करती थी, द सेंट्रल कैरेक्टर. ओके, क्योंकि उस नॉवल में भी जो वो लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो काशी जाना चाहती थी. So after hearing the episode of Kashi Yatre, the grandmother joined her friends at temple courtyard. तो अब जब भी वो उससे कहानी सुनती थी, उस एपिसोड को सुनती थी, तो वो उसके बाद टेम्पल कोर्टयार्ड में जाती थी और वहां डिस्कस करती थी लेटेस्ट एपिसोड अपनी फ्रेंड्स के साथ.
The narrator also goes there to play hide and seek with her friends. और जो narrator है वो भी जाया करती थी मंदिर और वो वहां पे अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है हाइड एंड सीक खेलती थी. एंड देयर वाज ऑलवेज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी व्हिच नरेटर वाज अनेबल टू अंडरस्टूड. लेकिन जो दादी थी और उसके जो फ्रेंड्स थे, जब वो लोग स्टोरी को डिस्कस करते थे तो वहां एक अच्छा खासा डिबेट शुरू हो जाता था, जो कि नरेटर के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल था. नाउ नरेटर वेंट विद हर कजन्स टू द नेबरिंग विलेज टू अटेंड अ वेडिंग. अब एक दिन क्या होता है कि ये जो है नरेटर है वो अपने कजन्स के साथ एक दूसरे विलेज में जाती है, नेबरिंग विलेज में शादी अटेंड करने के लिए. शी वेंट देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज. 2 दिन के लिए जाती है लेकिन उसको वहां पर 1 हफ्ता लग जाता है. When she came back to village after attending the marriage, she saw her grandmother in tears. जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी grandmother जो है वो रो रही थी. And she was surprised because she has never seen her crying in the most difficult of situations. So she was very worried. उसको बहुत चिंता हो गई क्योंकि उसने अपनी दादी को, अपनी grandmother को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था. हालांकि difficult situations में भी वो नहीं रोया करती थी. She asked her, is everything is fine? Is her grandmother all right? उसने उनसे पूछा. She used to call her Ava, which means mother in a Kannada spoken in North Karnataka. तो grandmother just nodded and she did not reply to her. तो उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं उस वक्त. The narrator didn't understood and forget about it क्योंकि वो छोटी है, 12 साल की बच्ची है, वो थोड़ी देर बाद भूल गई. But after dinner क्या होता है, when she was sleeping in the open terrace of the house, तो छत पे सब सो रहे थे, जो नरेटर है वो सो रही थी. इट वॉज अ फुल मून समर नाइट. तो अबा आती है, अबा यानी कि ग्रैंडमदर आती है, एंड शी सैट नेक्स्ट टू हर. शी टच्ड हर फोरहेड विद हर अफेक्शनेट हैंड्स. वो उसका सर पे हाथ घुमाती है. नरेटर रियलाइज दैट शी वांटेड टू स्पीक टू हर. द नरेटर आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर. तो नरेटर को लगता है कि वो उससे बात करने के लिए आई है और वो उससे पूछती है कि क्या बात है. Now the grandmother is telling her own story. अब यहाँ पर जो है grandmother अपनी कहानी बताएगी. That when she was a young girl, she lost her mother. वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ मर गई. There was nobody to look after her. Her father was a busy man. उसका जो फादर था, ग्रैंडमदर का जो फादर था, वो बहुत ही बिजी रहता था. उसने दोबारा शादी कर ली. He got married again. And in those days, people never considered education essential for girl. तो उस जमाने की बात कर रही है जब लड़कियों को पढ़ाना किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, एसेंशियल नहीं था. सो ग्रैंडमदर नेवर वेंट टू स्कूल. शी गॉट मैरिड एट वेरी यंग एज एंड हैड चिल्ड्रन. तो बहुत जल्दी उसकी शादी कर दी गई, उसको कभी स्कूल नहीं भेजा गया. शी वॉज वेरी बिजी. तो शादी के बाद वो बिजी हो गई अपनी लाइफ में. एंड लेटर शी फाउंड हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल हर grandchildren. So at times she used to regret not going to school. तो उसको समटाइम्स ऐसा पहले भी फील होता था, उसको ऐसा रिग्रेट फील होता था कि वो कभी स्कूल नहीं गई. तो उसके लिए उसने क्या किया, शी मेड श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल. वो चाहती थी कि उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई करें. Narrator here is unable to understand why her 62-year-old grandmother was telling her story to a 12-year-old girl. तो उसको क्यों बता रही है, वो 62 years की है, अपनी पुरानी कहानी, और वो एक छोटी सी बच्ची को क्यों समझा रही है, वो उसको समझ नहीं आ रहा था. And that is also in the middle of the night. But she understood that she loved her immensely. So there had to be some reason why she was talking to her. पर उसको ये इतना पता था कि उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती है और इसलिए उसको उसकी जरूरत है, उससे बात करनी थी. She felt unhappy as her eyes were filled with tears. तो नरेटर को दुख हो रहा है कि उसकी दादी की जो आंखें हैं आंसुओं से भरी हुई हैं. According to the narrator, the grandmother was a good-looking lady. वो बहुत अच्छी लगती थी. Who was almost always smiling. She leaned forward and held her hand. तो वो हमेशा हंसती रहा करती थी, स्माइल हमेशा उसके फेस पे रहती थी. तो जो नरेटर है वो आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ती है. तो वो उससे पूछती है कि ठीक है बताओ. सो ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट शी नीडेड हर हेल्प. तो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. शी टोल्ड हर व्हेन शी वाज अवे अटेंडिंग वेडिंग, करमवीरा केम एज यूजुअल. तो उसने उसको बताया जब वो
दूसरे गांव में चली गई थी शादी अटेंड करने के लिए। तो वैसे ही वो जो वीकली मैगजीन है करमवीरा वो आई। शी ओपन द मैगजीन, उसने उसे खोला। शी सॉ द पिक्चर्स बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शी रब्ड हर हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड। उसने बहुत कोशिश की बट व्हाट वाज रिटन बट इट वाज नॉट पॉसिबल। वो उसे नहीं पढ़ पाई। शी वाज नॉट एजुकेटेड इनफ। वो नहीं पढ़ी लिखी थी। शी वेटेड ईगरली फॉर हर ग्रैंड डॉटर टू रिटर्न। वो चाहती थी कि वो जल्दी से आ जाए। इवन उसका मन किया, शी थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, कि मैं उसके पास वहां पहुंच जाऊं और उसे बोलूं कि ये पढ़कर मुझे सुनाओ। शी इवन थॉट ऑफ गोइंग टू समवन इन द विलेज। उसने ये भी सोचा कि कहीं मैं अपने ही गांव में किसी के पास जाकर ये पढ़वा लूं and ask them to read the story, but that was too embarrassing. उसके लिए ये सब बहुत embarrassing था. She felt so very dependent and helpless. तो उसको ये situation बहुत ही helpless लगी. She said that they are very well off. अच्छे लोग थे, rich लोग थे, but what is the use of the money when she cannot be independent? वो independent नहीं थी, वो दूसरे पे dependent थी. ये बात उसको समझ आ गई. So narrator is unable to answer her and did not know what to answer. And grandmother continued. तो grandmother अपनी कहानी आगे बढ़ाती. Grandmother told her that she has decided to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. तो उसको अपनी helplessness और अपना ऐसा टाइम देखकर उसको लगा कि उसको भी कन्नड़ अल्फाबेट्स सीखने हैं और उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था. एंड शी विल गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड. शी आल्सो केप्ट सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन. तो उसने एक डेडलाइन भी सेट कर ली थी कि जो सरस्वती पूजा डे होगा तब तक वो सब कुछ सीख लेगी. She wanted to read a novel on her own. वो खुद पढ़ना चाहती थी and she wanted to be independent by that day. तो उस दिन तक वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए. तो सरस्वती पूजा डे को उसने टारगेट बना लिया था, डेडलाइन बना लिया था. नरेटर सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस बट स्टिल शी लाफ्ड एट हर. उसने उनके चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन तो देखी, लेकिन वो एक बच्ची है यहाँ पर. तो शी ऑल्सो लाफ्ड एट हर. उसको शायद कहीं ना कहीं ये बिलीव नहीं हो पा रहा था. नरेटर आस्क्ड हर एट द एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न. आप इस एज में पढ़ना चाहती हो अल्फाबेट्स. as your all hair are gray, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen. तो उसे लगा कि वो ये कैसे कर पाएंगी. She made fun of her grandmother childishly, but the grandmother just smiled. तो grandmother कहीं ना कहीं अंदर determined थी. So grandmother told her that for a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. She said she will also work harder than anybody and she will do it. And for learning, there is no age bar. तो डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल था ग्रैंडमदर के अंदर. और उसने कहा कि कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू इट. तो एज बार उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती. From the next day onwards, the narrator started teaching her grandmother. So दूसरे ही दिन से उन्होंने पढ़ना शुरू किया. She was a wonderful student. तो जो grandmother थी वो बहुत ही अच्छी student थी. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. तो यहाँ से पता चलता है कि वो कितनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ रही थी. For narrator, she was her first student. And here we also come to know that one day narrator also wanted to become a teacher in computer science. वो बड़ी होके टीचर ही बनना चाहती थी and wanted to teach hundreds of students. तो ये उनकी पहली स्टूडेंट थी जो कि उनकी अपनी ग्रैंडमदर थी. The Dasera festival came. अब वो दिन आया. Secretly narrator bought Kashi Yatre which had been published as a novel by that time. Grandmother called her to the puja place, made her sit down on the stool. She gifted her a frock and touched her feet. तो grandmother उसको बुलाती हैं. तो यहाँ पर ये भी है, नरेटर पहले से काशी यात्रा लेकर आई है और उसको जो है दादी माँ पूजा रूम में बुलाती है, उसे स्टूल पे बिठाती है, उसे फ्रॉक गिफ्ट करती है, उसके पैर छूती है. अब यहाँ पे उसके पैर छूने के बाद नरेटर वाज सरप्राइज एंड टेकन अबैक. सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता. बिकॉज एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. ऐसा कभी नहीं हुआ पहले. अकॉर्डिंग टू हर, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स. इट इज कंसिडर्ड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. इट वॉज अ ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन. बट ऑन दैट डे द रिवर्स हैपेंड.
एंड अकॉर्डिंग टू द नरेटर इट वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, उसने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया उसके। Grandmother told her that she is touching feet of a teacher, not her granddaughter. वो अपनी granddaughter के पैर नहीं छू रही, वो अपनी teacher के, अपने गुरु के पैर छू रही है. She taught her so well with so much of affection that she can now read any novel confidently. तो वो कोई भी novel को confidently पढ़ सकती है. And in such a short time. Now she has become independent. तो यहाँ पर grandmother जो थी वो independent हो चुकी थी, जो वो चाहती थी. She told her that is her duty to respect her teacher. ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी टीचर को रिस्पेक्ट करे. She asked her, is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? दादी माँ उसको कहती है कि ये सब हमारी होली राइटिंग्स में लिखा गया है कि टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे उसका कुछ भी जेंडर हो, चाहे उसकी कुछ भी एज हो. Narrator returned namaskara to her by touching her feet and gave gift to her first student. तो वो उसके अपनी दादी माँ के पैर छूती है, उसे गिफ्ट करती है. क्या? ग्रैंडमदर ओपनड इट एंड रीड द टाइटल काशी यात्रे. तो वो उसे काशी यात्रे गिफ्ट करती है, रिटन बाय त्रिवेणी. और वो उसको रीड करती है. ग्रैंडमदर जैसे ही उसको देखती है तो वो रीड करती है काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम इमीडिएटली. तो वो फटाफट से पढ़ लेती है ग्रैंडमदर. सो नरेटर हियर अंडरस्टूड दैट हर स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. तो उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इतने शॉर्ट टर्म में, इतनी जल्दी उसने सब कुछ उसकी ग्रैंडमदर ने सीख लिया. I hope you have understood the story. The question answers will be uploaded soon. Thank you so much. If you like my video, kindly like, share and subscribe.